Hello everyone. Coming to the most important topic, the emergency provisions. So, in the federal form of government, powers and responsibilities are divided among different tiers of government. Okay. In India, power broadly are divided between the central and state as they act within a well-defined sphere, coordinate and at the same time act independently. ठीक है? स्टेट मैटर स्टेट देखता है, सेंट्रल मैटर पे सेंटर देखता है, इंडिपेंडेंटली वर्क कर रहे हैं, अपना एक दायरा है उनका, उनका अपना एक दायरा है. So emergency provisions empower the exigencies. Okay, sorry. Due to any exigencies, emergency provisions empower the central government to turn the federal form of government into a unitary form of government. देखो फेडरल फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट क्या होती है बेसिकली क्या है आपको सेंट्रल कंट्रोल तो है बट जो सेंट्रल कंट्रोल है वो है बट स्टेट्स आर वर्किंग इंडिपेंडेंटली ठीक है पावर्स डिवाइडेड है सेंटर की कुछ पावर्स है तो स्टेट के पास भी कुछ पावर्स है and when emergency happens the state doesn't have the powers okay so it becomes a unitary system it is like ये बड़े गोले के बीच में this is a center तो ये छोटे छोटे states हैं आपके लेकिन what happens in emergency it becomes a whole sphere like you can say कि there is no state control over the things. Okay. Okay. Moving on further, it becomes a unitary form. Means देखिए the emergency provisions are contained in the part. It is 15, 16, 17, 18. Part 18th of the Indian Constitution under Article 352 to 368. Very much important. The emergency provisions contained in the Constitution of India were borrowed from the विमेर्स कॉन्स्टिट्यूशन यानी कि जर्मनी से बोरोज किए गए हैं बेसिकली ठीक है एंड द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1935 मिनी कॉन्स्टिट्यूशन वहाँ से बोरो किए गए हैं द emergency provisions have been extensively amended by the 42nd constitutional amendment 96 sorry यानी कि एक्सटेंसिवली इनको मॉडरेट या मॉडिफाई किया गया है अमेंड किया गया है हमने अमेंडमेंट देख चुके हैं कैसी होती है 42nd और 44th अमेंडमेंट में 76 और 78 में ठीक है एक्सटेंसिवली अमेंडमेंट मीन्स बहुत सारे चेंजेस किए गए हैं टाइप्स ऑफ इमरजेंसीज इन द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन देखेंगे कि कौन किस किस तरह की इमरजेंसीज लग सकती हैं सो इन इंडिया ऑल इमरजेंसीज आर ऑफ कोर्स डिक्लेयर्ड बाय द सुप्रीम अथॉरिटी द प्रेसिडेंट साहब activities are carried out in the name of the president there are three type of emergencies stipulated in the Indian constitution number one is a national emergency 352 article state emergency these are basically known as the president rule, of course. 56, 356, and the last one is your financial emergency under the article which is 360 here. Coming to the individuality, national emergency पे आते हैं तो national emergency article 352 ठीक है it is a proclaimed in India in the following three situation number one is a war लगी है national emergency external aggressions एक्सटर्नल एग्रेशन आपकी लाइक एग्जांपल पे हम जाएंगे एक्सटर्नल एग्रेशन मींस एक्सटर्नली इंडिया पे कोई एग्रेशन हो रहा है ठीक है एंड आर्म्ड रिवॉल्यूशंस ठीक है सो नाउ नोट 44th कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट ऑफ 1970 दो हुई थी अमेंडमेंट्स 44th एंड 46th सॉरी 42nd एंड 44th एक हुई है आपकी 76 में और एक हुई है 78 में तो 78 वाली जो लेटर ऑन है उसमें इंटरनल डिस्टर्बेंस को आर्म्ड रिवॉल्यूशन से बदला गया है पहले आर्म्ड रिवॉल्यूशन था नहीं कि आर्मी जो सॉरी जो आर्मी जो है सॉरी मोमेंट प्लीज sorry for the disturbance let me just give it so 44th amendment constitutional amendment थी 1978 उसमें आपका इंटरनल डिस्टर्बेंस को रिप्लेस कर दिया गया आर्म्ड रिवॉल्यूशन से इससे
The President of India can declare a national emergency even before the war होने से पहले, एक्सटर्नल एग्रेशन होने से पहले और आर्म्ड रिबेलिएशन से होने से पहले। उनको ऐसा लगे कि ठीक है जी, वॉर हो सकती है 1 महीने में, एक्सटर्नल एग्रेशन हो सकता है या आर्मी रिबेल कर सकती है, तो वो लगा देंगे इमरजेंसी, ठीक है। नाउ if national emergency is declared on war and external aggression, it is called an external emergency। देखो, कमिंग टू द नेक्स्ट, देखो नेशनल इमरजेंसी के अंदर 3 इमरजेंसीज हैं। अगर कोई वॉर लगी है या एक्सटर्नल एग्रेशन हुआ है तो उसको एक्सटर्नल इमरजेंसी बोलेंगे। क्यों? क्योंकि आपकी कंट्री है, वॉर आपकी अपनी कंट्री से थोड़ी ना होगी, बाहर से लोग आएंगे, या तो वो प्रॉपर आर्मी होगी फुल फ्लेज्ड, फॉर एग्जांपल इंडिया के केस में चाइना या पाकिस्तान, या एक्सटर्नल या फिर क्या बोल सकते हो, एक्सटर्नल एग्रेशन मीन्स किसी तरह के नेक्सलाइट्स, एक्सटर्नल नेक्सलाइट्स अटैक करते हैं, ठीक है, तो दैट वन, ठीक है। तो उसको हम इंटरनली उसको एक्सटर्नल बोलें बिकॉज एक्सटर्नली वॉर हो रही है। बट अगर आर्मी रिबेल करती है अंदर से, क्योंकि आर्मी तो हमारी आर्मी ही हमारे खिलाफ हो जाती है, आर्मी रूल लग जाता है, दैट कम्स अंडर इंटरनल इमरजेंसी, ओके। नेशनल इमरजेंसी कैन बी प्रोक्लेम्ड only after receiving a written recommendation from the cabinet। तो ये तभी लग सकती है जब आपके पास recommendation हो written। तो thrice in the country अभी तक 3 बार लग चुकी है ये। Now, let us see 62-71, this is a external aggression, of course the war, this is 62 Sino-India war I guess। okay, India into China war जो हुई थी, ठीक है, 62 and later Indo-Pak war। अब देख सकते हैं इमरजेंसी लगी है और उठी है ये जाके कम से कम भी 6 years आफ्टर 6 year। दिस वन ऑल्सो बांग्लादेश लिबरेशन वॉर जो चल रही थी वो भी, क्योंकि ये एक्सटर्नल एग्रेशन है ना, ठीक है। तो दिस इज ऑल्सो ना इंटरनल डिस्टर्बेंस। अगर आप देखो या आर्म्ड रिबेलिएशन, तो वो इंदिरा गांधी का लॉस ऑफ इलेक्शन था। कमिंग तो अप्रूवल ऑफ नेशनल इमरजेंसी बाय पार्लियामेंट, सो कंडीशंस लेट अस सी। ओके, within 1 month of the date of issue of national emergency proclamation, it has to approved by, देखो एक होता है इशू करना, एक होता है लागू करना। अप्रूवल तभी मिलेगा इशू होगी, इशू करने के 1 महीने तक इट हैज टू बी अप्रूव्ड बाय बोथ द हाउसेज, दोनों हाउसेज से अप्रूव होनी चाहिए। अर्लियर इट वाज 2 months वर अवेलेबल फॉर अप्रूवल, बट देखो अब सीवियर चेंजेस जो हुए थे यही हुए थे। 44th कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट से पहले 2 महीने तक टाइम था कि भाई 2 महीने हैं आपके पास अप्रूव करने के लिए इमरजेंसी को। अब क्या है, अब सिर्फ 1 महीना है आपके पास, यू शुड हैव 1 month ओनली, ओके। Condition 2 is that if the proclamation of emergency, national emergency is issued and Lok Sabha is either dissolved or the dissolution take place within 1 month without approval। देखो वेरी इंपॉर्टेंट नो, अगर नेशनल इमरजेंसी इशू कर दी गई है, अब देखो लोग हो सकता है लोकसभा राज्यसभा में कोई डिसॉल्व हो जाए, फॉर एग्जांपल लोकसभा डिसॉल्व हो जाती, ठीक है, लोकसभा आज ही डिसॉल्व हो गई, ठीक है, देन क्या होगा? तो जो प्रोक्लेमेशन होगी इमरजेंसी वो 30 days सर्वाइव करेगी, ठीक है, जहाँ से अगली लोकसभा बैठेगी, बिकॉज इलेक्शन होके नई लोकसभा आ जाएगी, ठीक है, तब तक अगर वो डिसोल्यूट होती है 1 month, विद इन 1 month है कि या तो एक है कि आज डिसोल्यूट हो गया, आपके पास 30 दिन थे लेकिन लोकसभा पहले ही खत्म हो गई, तो 30 दिन का पीरियड वेट चलेगा और इलेक्शन के बाद होगा। फॉर एग्जाम्पल 30 दिन आज लोकसभा डिसोल्यूट नहीं हुई, चलती रही, अप्रूव नहीं हो रहा है, अप्रूवल की डेट थी 20, आज तारीख है 1 और अप्रूवल होनी था 20 तारीख को, आप 20 तक चलते 19 को डिसोल्यूट हो गई,
तो वहां से भी 30 दिन लगा लो, ठीक है, सेम। बट प्रोवाइडेड कि राज्यसभा ने उसे अप्रूव कर दिया हो ओनली, ठीक है। ड्यूरेशन ऑफ नेशनल इमरजेंसी in the original constitution, once approved the parliament, the emergency could remain in operation as long as the executive desired. Executive means the government, of course. ठीक है? However, the 44th Constitutional Amendment of 1978 added a provision of periodic approval after every 6 months and can be extended to an indefinite period after parliament approval. Now you can see the severe changes. पहला चेंज वो इंटरनल एग्रेशन को रिप्लेस करके आर्म्ड रिबेलिएशन करना, ठीक है। 1 मंथ के नोटिस पीरियड को जारी करके तो 2 मंथ के अप्रूवल पीरियड को 1 मंथ करना, सेकंड चेंज। थर्ड चेंज यू विल नोटिस हियर कि इट शुड बी इन, पहले क्या था कि एक अप्रूव होगी एक बार, तो जब तक गवर्नमेंट चाहेगी तब तक रहेगी इमरजेंसी। अब क्या है अमेंडमेंट के बाद, 6 महीने बाद वो खुद रिवोक हो जाएगी, आपको उसे अप्रूव कराना पड़ेगा दोबारा से, कितनी बार भी करवा सकते हो आप अप्रूव, ठीक है। Revocation of national emergency. National emergency can be revoked by the president at any time without parliament's approval. Presidents आप कभी भी कर सकते हैं without parliament approval. However, the following safeguards were added by this 44th constitutional amendment. देखो अब देखो, प्रेसिडेंट साहब कर सकते हैं लेकिन कुछ सेफगार्ड्स ऐड किए गए हैं, पता नहीं क्यों, हम देखेंगे पढ़ के फिर लग गया पता। If Lok Sabha is in session and passes a resolution over discontinuing the national emergency, then the president is bound to revoke the national emergency. ठीक है, प्रेसिडेंट साहब ने कुछ नहीं बोला अभी, लेकिन लोकसभा ने पास कर दिया अपना एक रेजोल्यूशन कि ठीक है, आज से, कल से, 10 तारीख से या 20 तारीख से नेशनल इमरजेंसी बंद हो जाएगी, इमरजेंसी बंद हो जाएगी, डिसकंटिन्यू हो जाएगी, तो प्रेसिडेंट साहब साइन करने ही पड़ेंगे। If Lok Sabha is not in session, the 1/10 of the total member of okay. If Lok Sabha is not in session, अगर लोक सभा है ही नहीं सेशन में, तो then एक यानी कि 1/10 of the total number of members, लोक सभा के एक बाय 10 members given written notice को प्रेसिडेंट को एंड स्पेशल सेशन बुलाया जाएगा फिर। दिस इज ऑल्सो इन गुड थिंग कि अगर लोकसभा सेशन में नहीं है तो 1/10 100 है, 100 इज नथिंग बट 10 एमएलए एमपी को लिख के देंगे कि लोकसभा का सेशन बुलाया जाए, हमें इमरजेंसी रिवोक करनी है, ठीक है। नाउ इफेक्ट्स ऑफ नेशनल इमरजेंसी. Effects can be broadly categorized into the following three categories. On center-state relation देखेंगे हम. ओके, तो क्या चेंज होता है, लेजिस्लेचर की बात करेंगे. सेंटर इज एम्पावर्ड टू मेक लॉ ऑन स्टेट सब्जेक्ट. ठीक है, इमरजेंसी हो रही है, 3 सब्जेक्ट है हमारे पास, एक सेंटर का, एक स्टेट का, एक कंकरेंट लिस्ट. 3 लिस्ट है हमारे पास. ओके तो हमारे पास 3 लिस्ट है. तो अभी सेंटर क्या है कि सेंटर स्टेट पे बना सकता है, बिकॉज इमरजेंसी लगी है तो स्टेट सब्जेक्ट पे बना सकता है कानून जो भी है. द पावर ऑफ द स्टेट to legislate is not suspended. However, it becomes subject to the overriding power of the parliament. स्टेट की जो लेजिस्लेशन पावर्स हैं वो ख़त्म नहीं हुई है, बंद नहीं कर दी गई, ठीक है. बट ऐसा है कि ऐसे होता है कि आप लिख तो सकते हो लेकिन टीचर ओवरराइड कर सकता है ना उस चीज़ को, बस वही है, ठीक है. तो सेंटर कैन ओवरराइड ऑफ कोर्स दैट पावर. The law made by the parliament on the state subject during a national emergency become inoperative 6 month. ठीक है. So अगेन नेशनल इमरजेंसी भी 6 मंथ बाद रिवोक हो जाएगी. तो ऑफ कोर्स जो भी लॉ बनेंगे उस इमरजेंसी में वो 6 महीने बाद अपने आप इनऑपरेटिव हो जाएंगे, ठीक है, जब इमरजेंसी ख़त्म हो जाएगी. The president can also pass an ordinance on state subject if parliament is not in session. Of course, ordinance आ सकता है. Ordinance लाने के लिए हमने ordinance पढ़ चुके हैं सारे. So you can go to that video. Of course, ordinance के लिए आपके पास ये गवर्नमेंट लाती है जब सेशन में ना हो, ठीक है. Parliament of course. एग्जीक्यूटिव पे क्या फ़र्क पड़ता है. ड्यूरिंग नेशनल इमरजेंसी द सेंटर becomes empowered to give executive directions to a state on
एनी मैटर। देखो पहले स्टेट इंडिपेंडेंट था तभी इंडिया फेडरल था, लेकिन इमरजेंसी के टाइम पे क्या हो रहा है, इमरजेंसी के टाइम पे तो सेंटर हैज फॉरवर्डिंग द इंस्ट्रक्शन टू द स्टेट। ठीक है, आपको फॉलो करनी पड़ेगी। द स्टेट एग्जीक्यूटिव पावर्स आर नॉट सस्पेंडेड बट आर ओवररिडन बाय सेंट्रल डायरेक्टिव। सो सेम टीचर है वो आपको ओवरराइड कर देगा अगर आपने, ठीक है, किया कुछ, तो मतलब सेम सेंटर भी सेम ही करेगा। ठीक है। फाइनेंशियल की बात करेंगे, द प्रेसिडेंट कैन चेंज द डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ रेवेन्यूज between the center and state. However, every such presidential order has to be laid before the House of Parliament, of course. ठीक है, तो this is financially easy. Okay, on life of Lok Sabha and State Assembly पे क्या फर्क पड़ेगा? The life of Lok Sabha may be extended beyond its 5 term. ठीक है, देखो एक्सटेंड की जा सकती है अगर इमरजेंसी लगी हो तो लाइफ 5 साल से ज़्यादा की। The extension of Lok Sabha can be of any length of time, of course. However, ceases 6 months after the date of revocation of election। देखो आज रिवोक होती है इमरजेंसी, देखो फॉर एग्जांपल ये डेट एक स्टेट पे इमरजेंसी लगी और आज ही इनका कार्यकाल खत्म होना था। फॉर एग्जांपल 20 को कार्यकाल खत्म होना था, तो 1 तारीख को इमरजेंसी लग गई। ठीक है, तो 20 को चुनाव तो नहीं होंगे दोबारा से, ठीक है, तो क्या होगा, ऑफकोर्स यहाँ पे गैप होता है नहीं कुछ टाइम का, ठीक है, चुनाव करवाने के लिए। तो अब क्या होगा, इस अब क्या होने वाला है, यू कैन सी, अब क्या होने वाला है कि यहाँ पे उनका कार्यकाल खत्म था, इमरजेंसी लग चुकी है 1 तारीख से, यहाँ से वो 6 महीने के लिए, यानी कि कुछ फिक्स टाइम पीरियड के लिए, 6 मंथ ऑफ कोर्स, मतलब बेसिकली एनी लेंथ ऑफ टाइम के लिए बढ़ाई जा सकती है। फॉर एग्जांपल इमरजेंसी थी 1 साल, 6 महीने की, 1 साल, ठीक है, यहाँ पे इमरजेंसी खत्म होती है, ठीक है, तो यहाँ से वो 6 महीने तक रह सकते हैं, यही वाली सेम कॉपी, बट 6 महीने के बाद चुनाव होंगे ऑफकोर्स। दिस इज अबाउट द रिवोकेशन। ओके, यू कैन सी फिफ्थ लोकसभा टर्म की जो थी वो एक्सटेंड की गई थी 2 बार, 1 ईयर एट अ टाइम। तो फिर 2 बार की गई, मतलब 2 साल के लिए, यानी कि एक एक सेकेंड, टर्म वॉज एक्सटेंड। अब यू कैन सी ना 71, 5, 76, 177, 71 से लेके 75 तक, 1 ईयर एट अ टाइम। 71, 2, 3, 4, 5, ये इमरजेंसी लगी है फिर हमारी, यू कैन सी 71 में लगी है इमरजेंसी, तो यू कैन सी दैट ना 71 में अगर इमरजेंसी लग चुकी है तो वहाँ से उनको 5 साल चलना था, तो वो चले होंगे 5 साल ऑफ कोर्स। फिर उनको टर्म को क्योंकि इमरजेंसी कब खत्म हुई है, 77 में खत्म हुई है, ठीक है, और 1975 में भी लगी है इमरजेंसी। You can say these are two emergencies, back to back emergencies. Okay, 75 में खत्म होना था ना, तो 75 में खत्म होना था, तो 6 और 7 एक 2 साल के लिए एक्सटेंड किया गया है, ठीक है। फंडामेंटल राइट्स पे क्या इफेक्ट पड़ता है, वेरी मच इम्पोर्टेंट टू नो। आर्टिकल 358, let me just give me a moment. Article 358, let us do with this. It deals with the suspension of the fundamental articles, of course, ठीक है, so we know that. According to Article 358, when a national emergency लगती है, the fundamental right under Article 19 automatically gets suspended. However, the following articles not going to automatically get suspended, but however the following two conditions were made, ठीक है, तो कंडीशन लगी है उसके साथ आर्टिकल 19 को रिमूव करने के लिए। तो वी हैव दिस, okay, we know the article 19 is nothing but it is a freedom of speech expression, like freedom of speech basically by any means ना। तो इसके साथ कंडीशंस लगाई गई हैं इन दैट दैट इज अमेंडमेंट के साथ। तो इफ नेशनल इमरजेंसी इज डिक्लेयर्ड ऑन वॉर और एक्सटर्नल एग्रेशन, ठीक है, देखो अब
इमरजेंसी लगती है सिर्फ 2 कंडीशंस पे लगती है, अगर वॉर होती है या किसी कंट्री के साथ एक्सटर्नल अग्रेशन होता है, ओनली देन द फंडामेंटल राइट अंडर आर्टिकल 9 विल गेट ऑटोमेटिकली सस्पेंडेड। तब आपका फंडामेंटल राइट जो है 19 वो सस्पेंड हो जाएगा, ठीक है? Only those laws which are related to emergencies are protected from legal challenges in the courts and not other laws. इमरजेंसी से रिलेटेड जो होंगे वही आपको लीगली कोर्ट में आप उसको एनफोर्स करवा सकते हो, या फिर लीगली कोर्ट में आप उनको लेके जा सकते हो। अदरवाइज जो इमरजेंसी से रिलेटेड नहीं होंगे आर्टिकल्स, कोई लॉ, उसको आप नहीं लेके जाओगे, ठीक है? ओके। 359 it empowers the president to suspend the right to move any court for enforcement of fundamental right during the national emergency। कोर्ट्स को रोका गया है कि किसी फंडामेंटल राइट को एनफोर्स करवाना, कि कोर्ट होते हैं बेसिकली, जुडिशरी करवाती है एनफोर्स की फंडामेंटल राइट्स कभी आपके बंद नहीं होने चाहिए, बट अगर वो बंद हो रहे हैं तो कोर्ट की ड्यूटी होती है। लेकिन इमरजेंसी के टाइम पे प्रेसिडेंट हैव द पावर कि वो कोर्ट उसको बोल दे कि कोर्ट, सुप्रीम कोर्ट या फिर हाई कोर्ट, कि आप ये नहीं कर सकते इस टाइम को, नेशनल इमरजेंसी लगी है, ठीक है? This means that such a fundamental rights are not suspended but their enforcement। देखो राइट सस्पेंड नहीं हुए, एनफोर्समेंट तो बेसिकली इट इज द सेम थिंग है ना। अगर आप पानी का प्रेशर बंद कर दोगे तो पानी आना तो बंद होगा ही होगा, ठीक है? अगर टैप क्लोज कर दोगे तो पानी आना बंद होगा ही होगा, मतलब वो है फंडामेंटल राइट बट टैप इज क्लोज, एनफोर्समेंट नहीं हो रही, ठीक है? फंडामेंटल राइट सस्पेंशन कैन बी ऑफ शॉर्ट ड्यूरेशन और टिल द एंड ऑफ नेशनल इमरजेंसी। ऑफ कोर्स द प्रेसिडेंशियल ऑर्डर चाहिए होता है, ठीक है, बिफोर द पार्लियामेंट अप्रूवल के। तो 44 कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट रिस्ट्रिक्ट करता है सम ऑफ द आर्टिकल, इसके 359 जो हमने पढ़ा अभी, कि आप कोर्ट एनफोर्स नहीं कर सकता। तो फंडामेंटल राइट जो आपका 20 है, जो आपको कन्विक्शन से बचाता है, ठीक है, प्रोटेक्शन अगेंस्ट द कन्विक्शन एंड द राइट टू लाइफ है आर्टिकल 20, कैन नॉट बी सस्पेंडेड and remain unenforceable even during the emergency। तो आर्टिकल 20 एंड 21 वेरी मच इंपॉर्टेंट, ये दोनों के दोनों आर्टिकल एनफोर्सेबल रहेंगे कोर्ट्स के द्वारा, ये रहेंगे, ये नहीं सस्पेंड होते। ओनली दोज लॉ विच आर रिलेटेड टू emergency are protected from challenges and not by the law। अगेन भाई, coming to the president rule or the state emergency or the constitutional emergency, let us see how much time we have. We have 10 to 20 minutes। Okay, let us cover this whole. The following articles in the Constitution of India provides for carrying on the administration of the state in case of failure of the constitutional machinery. Basically, failure of the state or the constitutional machinery. That's why we are going towards the president rule, okay, in the state, of course. Coming to Article 355, okay, it is the duty of the union to ensure that the government of every state is carried on in accordance with the provision of the constitution। तो देखो सेंटर की ड्यूटी है कि इंश्योर करना कि जो भी स्टेट में चल रहा है वो अकॉर्डिंग टू कॉन्स्टिट्यूशन चले। Hence, under this duty obligation, the union can impose president rule under article 356 के अकॉर्डिंग वो president rule लगा सकते हैं, क्योंकि सब कुछ उनके देखने हैं कि आप कॉन्स्टिट्यूशन के हिसाब से चल रहे हैं कि नहीं। President is empowered to make proclamations either on the report of the governor के बेस पे, ठीक है, either on the report of the governor of the concerned state or otherwise, ठीक है, उनके मतलब इच्छा अनुसार वाली नहीं चीज़, अगर कुछ गलत हो रहा होगा तो वो लगेगी इमरजेंसी, स्टेट इमरजेंसी, ठीक है। तो गवर्नर भी लिख के दे सकता है, स्टेट का गवर्नर होते हैं टॉप अथॉरिटी, तो वो लिख के दे सकते हैं ये चीज़, ठीक है। दीज आर द इश्यूज, so you can put on the emergency, ठीक है। Under Article 365, President's rule can be imposed if any state fails to comply with all the direction given by the Union in matter of its empowered to। जिन भी मैटर्स के लिए
सेंटर रिस्पॉन्सिबल है, यूनियन रिस्पॉन्सिबल है। अगर वो डायरेक्शन देती है स्टेट को, स्टेट फेल्स टू कंप्लाई विद दैट, देन प्रेसिडेंट रूल कैन बी हैपन। ठीक है। अप्रूवल ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशनल इमरजेंसी बाय द पार्लियामेंट, तो कंडीशन जैसे कि आप देखेंगे, विद इन 2 months ऑफ द डेट ऑफ इशू ऑफ द प्रेसिडेंट रूल प्रोक्लेमेशन इट हैज़ टू बी अप्रूव्ड बाय बोथ द हाउसेस। यहाँ 2 मंथ है। हम देखेंगे अगर अमेंडमेंट हुई, पर पिछले में आपके पास सिर्फ 1 मंथ था, 2 मंथ थे, वो अमेंडमेंट के बाद चेंज हुआ है। कंडीशन टू, however, if the proclamation of emergency is issued and Lok Sabha is either dissolved or the dissolution takes place within the 2 months without approval, then the proclamation survives until 30 days from the first sitting or newly formed। तो सेम, बिल्कुल सेम है, बस यहाँ 1 महीने की जगह 2 महीने है लोकसभा को डिसोल्यूट हुए हुए, बट 30 डेज का पीरियड सेम है यहाँ पे भी। ठीक है। बट बट उस मीन टाइम में, 30 डेज के मीन टाइम में आपकी राज्यसभा ने उसे अप्रूव किया होना चाहिए, अदरवाइज नॉट। वेरी मच इम्पोर्टेंट। ड्यूरेशन ऑफ द प्रेसिडेंट रूल, if approved by both the houses, then the president rule continues for 6 months. An emergency can be extended for a minimum period of 3 years। देखो, 6 महीने के लिए लगेगी ये। ठीक है। मिनिमम पीरियड कितना हो सकता है इसका? 3 महीने, 3 साल। 6 महीने हुए, फिर रिवोक की, जब पार्लियामेंट ने दोबारा से पेश किया, नहीं हुए ठीक हालत स्टेट की, दोबारा से इमरजेंसी 6 महीने के लिए, 6 महीने बाद फिर से चेक, नहीं हुआ इमरजेंसी। ऐसे करते करते आप 3 साल मिनिमम कर सकते हो। ठीक है। सॉरी, मैक्सिमम 3 साल, 3 साल कर सकते हो, उसके बाद नहीं। ठीक है। उसके बाद का प्रोसीजर अलग है। हाउएवर द 44th कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट 1978 added the following two conditions as the safeguard। ठीक है। So as a safeguard they are added for the continuance of the emergency beyond 1 year। National emergency proclamation should be in operation in the whole of India or whole or any part of the state at the time of passing of such resolution। देखो, अगर आपको 1 साल से ज़्यादा चलानी है इमरजेंसी, तो इट इज़ टू बी कि नेशनल इमरजेंसी प्रोक्लेमेशन होनी चाहिए, वो या तो होल इंडिया में होनी चाहिए या किसी स्टेट में होनी चाहिए, या किसी स्टेट के पार्ट में होनी चाहिए इमरजेंसी, जब रेजोल्यूशन पास हुई है। ठीक है। इमरजेंसी होनी चाहिए बेसिकली। The Election Commission of India must certify that the general election to the Legislative Assembly of the concerned state cannot be held on account of difficulties। तो सर्टिफाइड बाय द इलेक्शन कमीशन की भाई साहब, जो जनरल इलेक्शन होने हैं स्टेट लेजिस्लेटिव असेंबलीज के लिए, वो इट कैन नॉट बी हेल्ड ऑन अकाउंट ऑफ डिफिकल्टीज, उनको कोई डिफिकल्टी नहीं है उस चीज़ से। रिवोकेशन ऑफ द प्रेसिडेंट रूल पे आएंगे हम, तो प्रेसिडेंट रूल कैन बी रिवोक एनी टाइम आफ्टर सच अ प्रोक्लेमेशन हैज बीन मे बी सब्सिक्वेंट प्रोक्लेमेशन बाय द प्रेसिडेंट। पार्लियामेंट अप्रूवल नहीं चाहिए, प्रेसिडेंट साहब कर सकते हैं। तो इफेक्ट ऑफ द प्रेसिडेंट रूल, तो हटा प्रेसिडेंट साहब सकते हैं। इफेक्ट ऑफ द प्रेसिडेंट रूल से, द प्रेसिडेंट इज एम्पावर्ड टू एडमिनिस्टर द स्टेट अंडर द प्रेसिडेंट रूल। तो प्रेसिडेंट इज एम्पावर्ड टू एडमिनिस्टर द स्टेट अंडर द प्रेसिडेंट रूल। तो प्रेसिडेंट जो है आपके एम्पावर्ड हैं टू एडमिनिस्टर करना स्टेट को। ठीक है। तो ऑफ कोर्स जो स्टेट चीफ मिनिस्टर होंगे वो उस टाइम में ऑपरेशनल नहीं रहेंगे, with of course their council of ministers। The state governor on the behalf of president on the state administration। तो बेसिकली क्या होगा कि आपका सेंट्रल गवर्नमेंट स्टेट गवर्नमेंट को देते हैं इंस्ट्रक्शन, बट स्टेट गवर्नमेंट एक एक बहुत अंग होता है, गवर्नर होते हैं एक स्टेट के। तो क्या होगा कि अब सेंट्रल गवर्नमेंट को डायरेक्शन आएंगे, वो डायरेक्शनली गवर्नर रखवाएंगे, बाईपास हो जाएगी काउंसिल ऑफ मिनिस्टर, चीफ मिनिस्टर नहीं रहेंगे उस टाइम पे, डायरेक्टली एडमिनिस्ट्रेशन सेंटर से रन होगी, प्रेसिडेंट के बिहाफ पे गवर्नर रन करेंगे उसको। ठीक है। यू कैन सी प्रेसिडेंट रूल और नेशनल इमरजेंसी में क्या फ़र्क है। पहले तो आर्टिकल का फ़र्क है, अलग अलग रखा गया है, 52, 56 एंड 55 एंड 6। आर्म्ड रिबेलियन, एक्सटर्नल एग्रेशन एंड यहाँ पे सेंटर की स्टेट की मशीनरी फेल हो जाना, मशीनरी इन द सेंस वो काम नहीं हो पाना जो होना चाहिए था। ठीक है। जिस तरह से हो पाना था। इफेक्ट क्या होता है, तो
तो यहाँ पे क्या है, सेंट्रल स्टेट की जो गवर्नमेंट है वो डिस्पोज या फिर कहीं से डिसॉल्व नहीं होती स्टेट की, बस अथॉरिटी माननी पड़ती है उनको सेंटर की नेशनल इमरजेंसी में। बट प्रेसिडेंट रूल में क्या है, वो डिसॉल्व हो जाती है, ख़त्म हो जाती है स्टेट, ठीक है। यहाँ पे आपके इफेक्ट नहीं पड़ेगा कौन से पे, 20 एंड 21 पे, आर्टिकल पे। बाकी सब आर्टिकल्स फंडामेंटल राइट पे इफेक्ट पड़ेगा नहीं होंगे वो। लेकिन एट द सेम टाइम प्रेसिडेंट रूल में ऐसा कुछ नहीं होता, फंडामेंटल राइट दे आर देयर। ऑल द स्टेट और सेंटर में रिलेशन चेंज हो जाता है, द रिलेशन ऑफ ओनली वन स्टेट वेयर द एक्टिव। यहाँ पे क्या है, ऑल द स्टेट्स विद द सेंटर, क्योंकि सभी ऑल इंडिया में लगी होती है इमरजेंसी, तो रिलेशन चेंज हो जाता है। यहाँ किसी एक स्पेसिफिक स्टेट में लगी है इमरजेंसी, तो रिलेशन इज नॉट मच चेंज बिकॉज एक ही स्टेट से चेंज होगा, ठीक है। तो अब यहाँ पे पार्लियामेंट क्या करेगी, उसको अप्रूव करती है विद इन 1 मंथ, और 6 महीने के लिए लगती है फिर अप्रूव करनी पड़ती है, सेम 6 महीने के लिए लगती है फिर अप्रूव करनी पड़ती है, लेकिन टाइम पीरियड 2 महीने का मिनिमम, मैक्सिमम यू कैन पुट एट 3 years, ठीक है। Misuse of the president rule. Here we have this. Okay, let us just go with this. Misuse of the president rule. Dr. B.R. Ambedkar Sahab, while replying to the support of these provisions, stated that drastic power conferred under Article 356 would remain a dead letter and would be used only as a measure of last resort. However, these provisions have become deadly weapons against being ruled by the parties other than the center state. Let us dig into that. 365 was used for the first time against the democratically elected communist state government in Kerala, of course. So 365 is your okay. This is what 365. Okay, this is the emergency, last emergency. You know the threat. First time president rule was imposed in Punjab. तो 56 से लग गया, 65 is against the fintech emergency या फिर okay, 65 is not there. Let us just go into that. Of course, I'll do that. Okay, the way president rule was proclaimed on various occasions has raised many questions about the effective use of Article 356. This is the president rule of the ancient constitution. At times the situation really demanded it, but at other times president rule was imposed purely on political grounds. अगर बंगाल में लगा दिया जाए पॉलिटिक रूल तो वो प्योरली पॉलिटिकल ग्राउंड पे लगेगा, ठीक है। हमें नहीं पता वहाँ पे क्या हो रहा है, आई डोंट नो, बट इफ से कि ठीक है, अगर नॉर्मल पर्सन नहीं बोलेगा पॉलिटिकल ग्रुप में लगाया गया, ठीक है। ये किसी और की गवर्नमेंट थी और वो काम अच्छे से कर रही हो, आई डोंट नो वो कर रही है कि नहीं कर रही, बट ऑफ कोर्स आई एम सेइंग नॉट अ फैक्ट बट अ हाइपोथेटिकल सिचुएशन। Even if the particular party enjoys a majority in the legislative assembly, oh, we got it. देखो, this is not our task. Suspending or dissolving assemblies and not giving a chance to other political parties to form a government in the state have been due to the partisan consideration of the union government, for which the Article 356 is misused. देखो स्टेट में क्या होता है कि कई बार होता है, कई बार भी तो हुआ तो ऐसे है नहीं, बट देखो सेंटर में अगर फॉर एग्जांपल बीजेपी है, हाइपोथेटिकल लेट अस अज्यूम सेंटर में कांग्रेस है और बीजेपी है पंजाब में, ठीक है। हाइपोथेटिकली आई एम अज्यूमिंग, बट अब पंजाब में गवर्नमेंट स्टेट गवर्नमेंट है बीजेपी की, लेकिन सेंटर नहीं चाहता कि बीजेपी की गवर्नमेंट हो वहाँ पे, तो वो क्या करेंगे, वो इमरजेंसी लगा देंगे। तो इमरजेंसी लगने के बाद बीजेपी की खत्म पावर स्टेट में। दैट इज लाइक मिसयूज। For example, when general elections were held after at the end of the National Emergency 77, Janata Party comes into power and dismissed 9 state government. You can see Janata Party center में आ गई पावर में, उन्होंने जहाँ जहाँ पे कांग्रेस थी वहाँ पे उन्होंने हटा दिया। On the ground of assemblies in those states no longer represented the wishes of electorate, ठीक है। तो हटा दिया उनको। On the ground क्या थे उनके हटाने के,
ये इलेक्टोरल के बेसिस में नहीं है। Similarly, when the Congress government returned to the power in 1980, it repeated the same in all nine states and by giving the same reason. Okay. Coming next, almost all the states have gone through the president's rule except the Telangana and Chhattisgarh. Uttar Pradesh went most of the time 10 times. 21 Pondicherry went under president rule because of the UT government lost the majority in the house. ऐसा हो जाता है कि अब आपकी मेजॉरिटी भी लॉस कर गया आप तो अभी टाइम होता है कुछ बीच में आपको प्रूव करने के लिए ये करने के लिए उस टाइम तक गवर्नमेंट कौन चलाएगा तो दैट्स वाई 19 में आपको नवंबर से लेके 33 नवंबर तक जब इलेक्शन से तब गवर्नमेंट ने गवर्नर प्रेसिडेंट रूल लगाया था ठीक है शॉर्ट ड्यूरेशन के लिए आते हैं जुडिशियल रिव्यू ऑन प्रेसिडेंट रूल तो पार्लियामेंट थ्रू 30th Constitutional Amendment Act 1975 made the satisfaction of the President in invoking Article 365 is final and cannot be challenged in court. Cannot be challenged in court, of course. Uh, However, this condition was removed by the 44th Constitutional Amendment Act and it is open for the judicial review. जुडिशली भी बेसिकली आप उस चीज़ को बाय जुडिशली आप जुडिशरी के सामने प्रेजेंट कर सकते हैं और जुडिशरी उसको सॉल्व करेगी जैसे भी मतलब बाय द जो भी मेथड्स होंगे ठीक है ओके तो आर्टिकल 365 की हम बात कर रहे थे इट इज़ नथिंग जो फेलियर होता है कंपायर सेंटर के साथ कंप्लाई करने का वो हो जाए ठीक है बिल्कुल मतलब स्टेट इज़ नॉट एबल टू copy what center is saying okay, in very simple terms. Well, we have this case and we have a fintech emergency financial sorry only financial emergency. Sir Bombay versus Union of India case. So Sir Bombay case gives one of the landmark judgment of the Supreme Court regarding the basic structure of doctrine, okay, as well as recording of frequent misuse of Article 356. So he was a Karnataka chief minister between August 1988 and April 1989. He led the Janata Dal government which was dismissed on 21st April 1989 when वो देखो अब 89 में वो डिसमिस हो गई वो चीफ मिनिस्टर थे ठीक है when president rule article 356 by imposed in Karnataka under this case Supreme Court declared secularism is a basic feature of the constitution ठीक है तो इससे उन्होंने बताया सुप्रीम कोर्ट ने कि सेकुलरिज्म बेसिक फीचर है कॉन्स्टिट्यूशन का The verdict concluded that the power of the president to dismiss a state government is not absolute power. ठीक है The verdict stated that the president should exercise the power only uh, after his proclamation imposing her rule by approved by both the court. तभी इशू करो आप जब पावर को अपनी यूज तभी करो प्रेसिडेंट साहब जब दोनों हाउसेस की अप्रूवल हो है ना The President can also suspend the Legislative Assembly by suspending the provisions of all the constitution relating to the Legislative Assembly. तो लेजिस्लेटिव असेंबली को प्रेसिडेंट साहब स्टेट की जो है उसको सस्पेंड कर सकते हैं तो कैसे जो प्रोविजंस हैं उनको सस्पेंड करके ठीक है सेम टैप आ रहा है पानी में सॉरी पानी आ रहा है टैप में तो अगर पानी ही ना हो तो टैप का क्या फ़ायदा कोई फ़ायदा नहीं तो गवर्नमेंट तो है बट पानी पावर्स नहीं लेजिस्लेटिव की दैट्स व्हाई In case of the proclamation does not get its approval on both the houses, it lapses at the end of period of 2 months and then dismissed government is revived. तो प्रोक्लेमेशन लगा तो दी लेकिन 1 मंथ के पीरियड में वो 1 या 2 मंथ का पीरियड जो भी होगा तो वो अप्रूव हुई नहीं किसी भी हाउस में तो गवर्नमेंट रिवाइव हो जाएगी The suspended legislative assembly also get reactivated. जो भी एलए होगी लेजिस्लेटिव असेंबली होगी स्टेट की वो रीएक्टिवेट हो जाएगी
The Supreme Court also stated that the proclamation of the imposition of Article 356 is subject to judicial review, and this is जो state president emergency है या president rule है, this is under the judicial review. You can also go to the court, Supreme Court of India कि हमारे यहाँ तो of course the state government will go कि emergency लग गई है. Okay, so it's a long. So next lecture we are going to see the financial emergency. Thank you.